Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444, 23717106 or 23717117. And yes, if you are calling from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. धन्यवाद लालिमा और नमस्कार हमारे मार्केट मंत्र के सभी श्रोताओं को। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक ताजा आर्थिक समाचार। आज सोमवार है, आपके सवाल भी आज कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर सिंह जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा। Thank you, Vishal. Yes, the headlines first. Well, benchmark domestic indices climb 1.5%. Rupee depreciates 8 paise against the US dollar. And global stocks rebound amid steady bond yields and progress in US stimulus package. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में 1.5% का उछाल। रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे हुआ कमजोर और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में नरमी और प्रोत्साहन पैकेज में प्रगति के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में मजबूती का रुख। कार्यक्रम में सबसे पहले बात घरेलू शेयर बाजारों की। वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी से आज प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% का उछाल आया। अमेरिका में प्रोत्साहन पैकेज को लेकर सकारात्मक खबरों और बॉन्ड यील्ड में नरमी से वैश्विक शेयर बाजारों को मजबूती मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1.53% की वृद्धि से 750 अंक ऊपर 49,850 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 232 अंक के उछाल से 1.6% बढ़कर 14,762 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में भी बढ़त देखी गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.46%, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.61% की बढ़त के साथ बंद हुए। Benchmark domestic stocks today climbed 1.5% in sync with gains in the global equity markets. Global indices rose amid calm in the rising bond yields and positive reports regarding US stimulus. The BSE Sensex closed 750 points or 1.53% up at 49,850, while the NSE Nifty surged 232 points or 1.6% to finish at 14,762. The broader market at BSE also gained. The mid-cap index ended 1.46% up, while the small-cap index appreciated 1.61%. In the Sensex pack, shares of 29 out of 30 companies gained, while Bharti Airtel fell 4.5%. Power Grid gained the most as it added 5.9%, followed by ONGC, which rose 5.4%. Ultratech Cement ended 4.3% up, and Asian Paints gained 3.8%. Kotak Bank settled 3.5% up, and Titan added 3.3%.
In sectoral indices, 18 out of 19 sectors logged gains as telecom sector fell 3.4%. Basic material was a top gainer as it gained 2.9%, followed by utilities climbed 2.5%. Auto sector stocks appreciated 2.3%, while power, metal and consumer discretionary goods and services ended 2.1% up. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,948 companies gained, while 1,121 declined. Shares of 198 companies remained unchanged. And now we are joined by Rahul Bakshi from Delhi Online. Yes, Rahul. Hello. जी राहुल जी, हाँ आप सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने पिछले 10-12 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अभी जैसे पिछले साल काफी बुल रन आया और काफी इक्विटी हाई हुई, तो मेरे को करीबन सब मिला के अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 12 से 14% का मेरे को अभी मिल रहा है रिटर्न। तो क्या ये प्रूडेंट रहेगा कि मैं उस प्रॉफिट को बुक करके मतलब किसी स्विच कर लूँ टू डेट फंड और अपना प्रॉफिट सेव कर लूँ, या फिर मैं अभी इक्विटी में इन्वेस्टेड ही रहूँ आगे के लिए? क्या आपका सजेशन होगा? यस सर। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में अपने इन्वेस्टमेंट किया और रिटर्न काफी अच्छा जो आप बता रहे हैं। अब ये एक तो देखना पड़ेगा कि यूजुअली ये माना जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी, डेट और इनका सबके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए फंड्स में भी, क्योंकि जरूरी नहीं जब इक्विटी में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो आपको कई बार लॉसेस भी होते हैं, और डेट्स के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है तो थोड़ा स्टेबिलिटी फैक्टर रहता है। बट एट द सेम टाइम आपको ये देखना चाहिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है और अभी उसके ऊपर जो रिटर्न आपको मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से क्योंकि पीछे मार्केट नीचे गया था और उस वक्त जो लोग कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहे उनको रिटर्न काफी अच्छा है, बट अभी मार्केट काफी ऊपर है और इसमें बहुत शार्प उस तरीके का चेंजेस अभी बहुत जल्द तो नहीं उस तरीके से मिलेंगे इतने कम ड्यूरेशन में जितना पिछले एक साल में हुआ है। तो इसलिए अब आप अपना डिसीजन इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ले सकते हैं। और हरवीर जी, अगर बात करें आज के शेयर बाजार की चाल के बारे में, तो जो पिछला एक हफ्ता रहा वो तो काफी गिरावट वाला रहा, लेकिन आज जो कारोबारी सप्ताह का पहले दिन जो है ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली है। और इस रिकवरी के पीछे जनरली बात यही कही जा रही है कि जो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में जो नरमी के संकेत मिल रहे हैं और प्रोत्साहन पैकेज को भी आगे बढ़ाने की बात हो रही है। इसके अलावा भी क्या कुछ आप घरेलू कारक देखते हैं जो कि आज घरेलू बाजारों में सूचकांकों में तेजी थोड़ी दर्ज हुई है? असल में देखिए कि एक तो फ्राइडे को जो नंबर आए थे हमारे जीडीपी के, उनको भी हमें देखना चाहिए कि थर्ड क्वार्टर में ये पॉजिटिव में चला गया है जी। जो दोनों पहले क्वार्टर थे उनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इसलिए ये एक बड़ा फैक्टर है। और एग्रीकल्चर का तो काफी अच्छा ग्रोथ था 3.9%, इसका मतलब रूरल एरिया से डिमांड निकल रही है जी। और अभी जो आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसको भी अगर मद्देनजर रखें तो आरबीआई का कहना है कि जो डिमांड है वो बहुत तेजी से नॉर्मल हो रही है। हालांकि अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी उस तरीके से नहीं हो पाया, बट इट इज क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट फॉर इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। सो उनको मेरे ख्याल से मद्देनजर रखते हुए ये मार्केट पे भी इन सब चीजों की तरफ गया है ध्यान। और अगर आप देखें कि जो फरवरी का जीएसटी कलेक्शन है उसमें भी ग्रोथ है, 1,13,000 करोड़ के करीब रहा है, और ये कई महीने से 1 लाख करोड़ को पार कर रहा है जी। तो ये सारे फैक्टर्स भी मेरे ख्याल से मार्केट उसके ऊपर नजर रख रहा है। जी हरवीर जी, इस पर भी आगे बात करेंगे आपसे। हमारे साथ इस बीच एक कॉलर दिल्ली से जुड़ गए हैं, सुरेश जी। सुरेश जी। हाँ, नमस्कार जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। क्या सवाल है आपका? सर, हमारा 2 क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ जी। पहला प्रश्न मेरा ये है कि क्या ये अप्रोच सही रहेगा कि कुछ ब्लू चिप कंपनियों को 10-12 साल के लिए रख लिया जाए और आपस में कोई ट्रेडिंग ना करना हो, सेल किया जाए, परचेज किया जाए और ऐड करते रहे ब्लू चिप कंपनी के शेयर? तो क्या स्ट्रेटजी ये काम करेगी इन लॉन्ग टर्म? नंबर 1। एंड नंबर 2, मैं कंपेरिजन चाहूंगा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट वर्सेज इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग रन, 10-25 ईयर्स के लॉन्ग रन में, व्हिच वन इज एडवाइजेबल?
देखिए, ये तो आपका ठीक है कि आप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म उसको आप मेंटेन करें रिटर्न के लिए, ये बेहतर आपका विचार है। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स बहुत डायनेमिक होते हैं। जो आज ब्लू चिप है, जरूरी नहीं कि वो 8 साल बाद ब्लू चिप हो। तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। जिस सेक्टर और कंपनी के ऊपर आप पूरा भरोसा करके चल रहे हैं, उसका फ्यूचरिस्टिक जो उसके आगे का जो परिस्थितियां हैं उनको भी मद्देनजर आपको रखना चाहिए। ये मेरे इसमें सुझाव होगा। दूसरा, रियल एस्टेट का आप देखिए, पिछले कई साल से लगातार रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें रिटर्न की गुंजाइश तो लगभग नहीं रही, बल्कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत हुआ इन्वेस्टमेंट का और बहुत इन्वेस्टमेंट लॉस हुए हैं उसमें जबरदस्त तरीके से। हालांकि अब थोड़ा डिमांड निकलना शुरू हुआ है, बट अगेन उसमें क्योंकि बहुत सारे डेवलपर बेहतर स्थिति में नहीं है, कुछ अच्छा कर रहे हैं और इसलिए ये इक्विटी के साथ अभी बहुत ज्यादा कंपैरेटिव ऑप्शन नहीं है। और इसलिए आप देखिए कि जो बाकी दूसरे एवेन्यूज थे इन्वेस्टमेंट के, वो रियल एस्टेट हो या इवन बुलियन भी हो, गोल्ड में भी काफी ऊपर गया था, बट नाउ उसमें करेक्शन बहुत आया। और डिपॉजिट्स जो हैं, टर्म डिपॉजिट्स, उन सब के मुकाबले इक्विटी ही और ये स्टॉक मार्केट ही ज्यादा बेहतर ऑप्शन लग रहा है इन्वेस्टमेंट का, वहीं पर रिटर्न्स बेहतर रहे हैं। Right, we are now joined by Animesh from Greater Noida. जी अनिमेश, सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। अभी वर्तमान परिवेश को देखते हुए शुगर सेक्टर के स्टॉक्स और टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक्स में निवेश कैसा रहेगा, जरा जानकारी दें। धन्यवाद। देखिए, टेलीकॉम में पहले के मुकाबले तो स्थिति थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन अभी भी काफी स्ट्रगल कर रही हैं कंपनियां। एक जियो को अगर छोड़ दें, बाकी जो है, हालांकि उन्होंने अपना नया प्लान लेकर के आया है, बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन है कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए और टैरिफ्स बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। एक तो ये देखना पड़ेगा और आगे 5G आ रहा है तो किसके पास सरप्लस पैसा है उसमें ये खरीदने के लिए स्पेक्ट्रम, प्लस जो पुराना जो विवाद चल रहा है कंपनियों को जो पेमेंट करने हैं वो एक फैक्टर्स है। तो ये सारा आपको पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। जहां तक शुगर में आपने बात कही है कि अभी हमारे पास सरप्लस शुगर है। देखिए, इस बार भी 30 मिलियन टन से ज्यादा प्रोडक्शन होगा और एक्सपोर्ट पिछली बार हमने करीब 6 मिलियन टन किया था, 5.8 मिलियन टन। और इस बार भी टारगेट 6 मिलियन टन का ही है और गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है कि एक्सपोर्ट हो, जिससे कि जो ग्लट है वो कम हो और ये प्राइसेस के ऊपर कुछ बेहतर स्थिति बने। लेकिन अभी भी जो मिनिमम सेल प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है 31 रुपीज पर केजी, लगभग उसके आसपास ही कंपनी है। तो उनका रेवेन्यू का कोई जो कमोडिटी है उससे बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। लेकिन एक तो गवर्नमेंट का जो ग्रुप है वो ऑलरेडी एक डिसीजन ले चुका है जो कि अभी लागू नहीं हुआ एमएसपी इंक्रीज करने का। दूसरा ये है कि जो दूसरे रेवेन्यू स्ट्रीम हैं इन कंपनीज के, वो एथेनॉल हो या पावर का कोजेनरेशन हो और कंट्री लिकर हो, उस सब में ये लोग जा रहे हैं। इसमें जो प्रॉमिसिंग फैक्टर है वो एथेनॉल का सबसे बड़ा प्रॉमिसिंग फैक्टर है कि वो, क्योंकि एक तो ग्रीन फ्यूल है और हमारा जो क्रूड का रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी को कम भी करता है। गवर्नमेंट ने एनकरेज भी किया और वहां पर इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहा है। तो यू हैव टू लुक विच कंपनी इज गोइंग इन अ बेटर मैनर, उसका मैनेजमेंट या उनका इन्वेस्टमेंट प्लान, और ये जो अदर जो रेवेन्यू उनके एवेन्यूज हैं अदर देन शुगर एज ए कमोडिटी, किसका बेहतर है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कंपनीज को। राइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय सतीश कुमार अगेन फ्रॉम दिल्ली। जी सतीश जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे चाइना है, चाइना ना भारत से 2 साल बाद इंडिपेंडेंट हुआ है, लेकिन वो एक सुपर पावर बन गया और भारत उससे काफी पीछे है। तो इसमें भारत की कहाँ पे क्या कमी रहेगी कि This is a little general question. Perhaps you'd like to answer, Harveer. देखिए, उनका इकोनॉमिक पॉलिसीज हमसे अच्छी रही होंगी एंड चाइना इज बेसिकली एक तरीके का वो कम्युनिस्ट कंट्री है और उनका जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस उनके यहाँ अलग है, हमारे यहाँ प्रॉपर डेमोक्रेसी है। बहुत सारे हर्डल्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के समय पर, वो सारी चीजें हैं। वो एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट है ओवरऑल और बाकी दुनिया से काफी अलग है।
सो उन्होंने काफी सख्ती के साथ अपने जो नियम कायदे बनाए और जो पॉलिसीज बनाई उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और ये भी है कि उनको काफी अच्छा सपोर्ट भी मिला चाइना से, ये पहले जापान से मिला और यूएस से मिला। उनको अच्छे मार्केट्स मिले, टेक्नोलॉजी भी काफी वहां पहुंची और इन्वेस्टमेंट बहुत हुआ है वहां पर बाहर का। तो क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट उस तरह का दिया, लेबर लॉज हो या लैंड एक्विजिशन हो, जो कि नॉर्मली हमारे जैसे कंट्री में उस तरीके से संभव नहीं है। देयर आर सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ factors to China को आगे लेके। Although we would still give democracy a thumbs up, right? We have another person on line. रमेश कुमार कोलकाता से फोन लाइन पर हैं। हेलो जी रमेश जी। रमेश कुमार जी। जी हाँ। नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। LIC में सीनियर सिटीजन ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट जो महीने में पेंशन के तौर पर देता है, कोई रिस्क वाली बात है या नहीं सर? धन्यवाद। रमेश, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार। नो, आई थिंक देयर वाज सम प्रॉब्लम। सीनियर सिटीजन LIC की स्कीम के बारे में कुछ वो कह रहे थे, पूछना चाहते थे। हेलो Harveer? Hello. Yeah, could you catch the question? Okay, I think... No, I'm unable to... Okay, never mind. All right, we have Shivanand from Mumbai now. जी, सवाल पूछिए। हेलो हेलो। यस, शिवानंद जी सवाल पूछिए। आज के पेपर में ऐसा आया है कि इवन यूएस के किसी सीनेट ने कहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डेट ऑन यूएस, और जिसमें से एक इंडिया भी उनको मिस क्रेडिटर है। हाउ इट इज पॉसिबल? नो, एक्चुअली क्या है, देखिए जो यूएस के जो बॉन्ड्स हैं उनमें बहुत सारे देश जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारे पास भी जो फंड्स होते हैं इन्वेस्टेबल, सेंट्रल बैंक के पास हो, गवर्नमेंट के, वो इन्वेस्टमेंट वहां पर होता है। तो इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बट यूजुअली लोग मानते हैं कि यूएस इतनी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की और वहां पर शायद उनको जरूरत नहीं होगी, बट डेफिनेटली उनका पब्लिक बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है और हमारे जैसे देश या चाइना और बहुत सारे देश ने वहां पर उनके जो उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। रविंद्र हैं मुंबई से। अब हेलो। हाँ जी रविंद्र जी। हाँ सर जी सर नमस्कार। जी नमस्कार, क्या सवाल है? मार्केट मंत्री पूरे टीम को नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा ये सवाल था कि मैं अभी रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ और मेरा प्रोविडेंट फंड का पैसा एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मंथ में, तो उसको मैं कहाँ सेफली इन्वेस्ट करूँ, इसके लिए मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए था। आप देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है आपके लिए, बिकॉज आपका लाइफ टाइम सेविंग्स है जो आपने अपने पूरे करियर में इकट्ठा किया है फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी, बेसिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। तो एक तो जाहिर सी बात है कि आपको एक पेंशन तो वहां से होगा ही। तो ये माना जाता है कि क्योंकि वो पेंशन उतना सफिशिएंट नहीं है, तो यू शुड लुक के कुछ इस तरीके का स्कीम्स आप देखें जो कि आपको पेंशन का आपका जहां से बेहतर व्यवस्था हो वो आपको देखना चाहिए। बाकी आपको सेफ आपका एक जो बुके बनाना चाहिए अपने जो फंड्स हैं उनका, कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट में जाएं या फिक्स्ड इनकम में जाएं, क्योंकि यू आर रिटायर्ड नाउ, तो आपको जो अर्निंग्स हैं वो उसी में से आपको देखना है कैसे आपको लाइफ चलेगा। तो यू हैव टू गो सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर दैट। Yes, you mentioned book. Probably he shouldn't spread it all. He should spread it all rather than putting it all in one basket. खास तौर पे ऐसे जो हरवीर जी ने बताया कि ऐसे प्लान्स में इन्वेस्ट करें जहां की एन्युटी की कुछ संभावना बनती हो। जी जी बिल्कुल। We now have Amrinder Singh online again from Delhi. जी। हेलो। हाँ जी सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैम। नमस्ते जी। जी एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए मतलब मिनिमम कितने फंड इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और उसके लिए कौन सा इक्विटी बेस्ड रहेगा या और कौन सा है? जी हाँ, देखिए, एक तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट अपना खोल के, और उसके माध्यम से आप ये कर सकते हैं। दूसरे म्यूचुअल फंड रूट है आपके पास। यूजुअली नए आदमी के लिए माना जाता है कि आपको म्यूचुअल फंड रूट में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स हैं वो समझते हैं कि कैसे फंड्स का डिप्लॉय करना है, किस तरह के अपॉर्चुनिटीज देखनी है, इक्विटी में जाना है, डेट में जाना है, और ये सब चीजें वो लोग एक कॉम्बिनेशन रखते हैं एंड दे आर
वेरी गुड एक्सपर्ट्स। तो ये आपको देखना, मेरे ख्याल से नए सीरीज में आपको नए तरीके से म्यूचुअल फंड रूट की तरफ जाना चाहिए। समर चौधरी फोन लाइन पर है कोलकाता से। हेलो, नमस्कार मनप्रीत मंत्र, गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग। जी जी जी, ओके, गुड इवनिंग। सॉरी नेवर माइंड, दैट्स मटेरियल। जी जी, सवाल पूछिए। जी 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 जी। अच्छा सब एक चीज, मैंने रिसेंटली रिटायर किया हूँ जी। और क्या है मेरा इन्वेस्टमेंट वो ये था, SBI ये पे था। हेलो, हाँ जी, हाँ जी जी बोलिए आप। हेलो, म्यूचुअल फंड में, SBI म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद क्या म्यूचुअल फंड थोड़ा डाउन होते जा रहा है। उस समय पे मैंने उसको उठा के SBI लाइफ में डाला। वेदर इट इज करेक्ट डिसीजन और नॉट, क्योंकि मैंने यही जानना चाहता हूँ। जी देखिए, इधर तो मे बी दैट पर्टिकुलर स्कीम में इश्यू होगा, अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स ने अच्छे रिटर्न दिए हैं इधर। जो मार्केट में जो इम्प्रूवमेंट आया है, और बिकॉज SBI इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन, सो वहां पर आपके फंड्स का वो बेहतर इस्तेमाल तो करेंगे। बट आई थिंक म्यूचुअल फंड वाज नॉट बैड। आई डोंट नो, पर्टिकुलर स्कीम में भी डाउन और उन पे रिटर्न अच्छा नहीं आया होगा, तो ये आपको देखना चाहिए। We're now joined by Bharat from Bharat, probably that's the correct pronunciation, from Rewari, Haryana. Yes, Bharat ji, सवाल पूछिए। हेलो, या जी भरत जी। गुड इवनिंग मैडम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गोल्ड रेट है वो कंटिन्यूस अभी डाउन की तरफ है, तो फ्यूचर में मतलब इन कमिंग मंथ व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ द गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड? देखिए, पिछले कुछ महीनों में पहले गोल्ड काफी आगे गया था। एक तो ये भी था कि सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है गोल्ड को, सेफ हेवन, तो और पेंडेमिक की वजह से काफी उसमें डिमांड निकली। इवन कई सारे सेंट्रल बैंक्स ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए उसमें प्राइस मूवमेंट गया था। बट उसके बाद शार्प करेक्शन भी आया, अब भी थोड़ा स्टेबल है। और इट ऑल्सो डिपेंड्स के जो इन्वेस्टमेंट के मकसद के अलावा बाकी भी जो ट्रेडिशनल रीजन होते हैं गोल्ड खरीदने के, वो भी है, बट वो इकोनॉमी कैसे मूव करती है उसके पैरेलल चलते हैं। बट अभी जिस तरीके से करेक्शन आया और बाकी एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो बहुत बड़ा कोई उसमें रिटर्न की गुंजाइश इन सर्कमस्टांसेस में नहीं दिखती शॉर्ट टर्म में। Okay, thank you. Right. Now let's take a look at the rupee. Well, the rupee today has depreciated 8 paise against the US dollar to settle at 73 rupees and 55 paise. The domestic unit weakened mainly due to strength in the American currency. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, also rose 0.20% to 90.06 in intraday trade. So, how do you see the rupee depreciating 8 paise against the US dollar? No, actually, rupee movement, there are two major reasons. One is that if dollar index, which direction it is going, or if dollar is strengthening, it directly affects the rupee. Other than that is our requirement of dollars in for our import purposes. So what kind of liquidity in terms of dollar is available? So these two factors affect the movement of rupee. But if you see in the last even few months, not this, rupee is very stable. Little bit movement is there only, not a very big change. We had a question from Ramesh from Kolkata. He's right now connected with us, and he was asking a question about LIC. जी रमेश जी, सवाल पूछिए। तो नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछिए, अब कनेक्ट हो गए आप। LIC में सीनियर सिटीजन के लिए ऑनलाइन वाला इन्वेस्टमेंट जो महीने में पेंशन के तौर पर देता है, कोई रिस्क वाली बात है या नहीं सर? धन्यवाद। देखिए, LIC एक बहुत ही क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसीलिए उसका अगर आप देखेंगे जो मार्केट शेयर है, डिस्पाइट हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर करीब 2 दशक हो गया प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खुल गया, लेकिन जो LIC का मोनोपोली है कहीं, या उसका जो मार्केट का जो स्ट्रेंथ है, दैट इज कंटिन्यू। रीजन इज द ट्रस्ट। So that's why LIC investment is much reliable than I can't say any individual companies, but LIC itself is a very reliable organization in terms of investment. Right.
और अब बात कर लेते हैं एशियाई बाजारों की। पिछले सप्ताह की तेजी के बाद अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में नरमी के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज मजबूती आई। प्रस्तावित अमेरिकी राहत पैकेज में प्रगति से भी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। हालांकि चीन से मिल रहे विनिर्माण क्षेत्र के आंकड़े उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे हैं, लेकिन जापान से प्राप्त आंकड़ों से अर्थव्यवस्था में पिछले 2 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि का पता चलता है। जापान के निकेई में आज 2.4% का उछाल आया और हांगकांग का हैंगसेंग 1.5% चढ़ा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.2% और सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स में 0.8% की बढ़त दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में कारोबार नहीं हुआ। अंतर्दिवसीय कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजारों में भी तेजी का रुख रहा। लंदन का FTSE 100, फ्रांस का कैक और जर्मनी का डेक्स 1.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। And a look at the oil. Well, oil prices today rebounded more than $1 per barrel after the U.S. House of Representatives passed a huge stimulus package, although a slowdown in China's February factory activity growth capped gains. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $65 per barrel, while WTI crude prices were around $62.10 per barrel. बात अब गोल्ड की कर लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल माह के सौदों के लिए सोने के भाव में आज तेजी देखी गई। सोना वायदा 115 रुपए महंगा होकर 45,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा था। मार्च महीने के सौदों के लिए चांदी का भाव 900 रुपए की मजबूती से 68,160 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास रहा। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर सोना बढ़त के साथ $1,744 प्रति औंस और चांदी $27 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। And now we're joined by Shankar from Bhopal. A quick question, Shankar, since we don't have much time. Ji. Hello? जी शंकर जी। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। My question is about inflation, food inflation. Government is trying to contain food inflation in the range of 3 to 4%, while producing these wheat and chana and dal. Even threshing cost is going up. On one side, government is trying to control the inflation, but other hand, it will increase the price and income of the farmers. So, isn't it a dilemma to contain inflation, food inflation especially? Yes, sir. Yes, food inflation, as you said, it's under control, and basically there is an agreement between government and RBI to keep retail inflation at 4% plus minus 2, as per their agreement. So for that, you have to control food inflation if you want to keep the prices low. But we have plenty of stocks available in terms of food, but 2 factors are there. We used to depend on pulses import, but now, in the last 2-3 years, a lot of improvement happened on pulses production side, and we are almost self-sufficient. Import dependence has gone down, so the prices are also under control. But oil seed production is not as per our requirement, and we depend a lot on edible oil import. And recently, if you see in the last few months, the prices of edible oil has gone up. But if you see other commodities, the prices are really under control. But as you said that if we have to give more money to the farmers, we have to increase the MSP. But when we increase the MSP, basically the procurement happens only food grain, major crops are food grain, and government provide a low price food grain to the needy large section of the society at a very low price. So in that case, inflationary pressure will not be felt from that side. But we have to keep a balance between the two. And not to forget that the government subsidizes a lot of food grain also. जी, इस बीच मोदी नगर से अशोक कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, लेकिन अशोक कुमार जी माफी क्षमा चाहेंगे, आज समय की कमी है और आपका कॉल हम आज नहीं ले पाएंगे। हरवीर जी, आप कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices climbed 1.5%. Rupee depreciates 8 paise against the US dollar. And global stocks rebound amid steady bond yields and progress in US stimulus package. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. On behalf of myself, Lalema, Anita Dang, and my co-anchor, Vishal Sharma, we bid adieu. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.